Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Jagat Guru Shri Prabhupada ki Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai Hare Krishna. It looks like people are still busy with their schedule today. Anyway, we're going to start off the session without waiting. Completed 19 shlokas of chapter 11 up to yesterday. And even yesterday, a very nice question was asked. So I'll start off with this question. It was asked. So one of the KL devotees asked, Prabhuji, why sometimes, even though we know the goals of our life, the ultimate goal of life, why we are hindered from following it, and why a person like Arjuna also gets bewildered when it comes to the following of one's duties. It's a very nice question, relevant question for the topic that we are discussing today. We are discussing in this particular series. The answer for this question is the same reason why Arjuna is getting bewildered. Even we, sometimes even though we know what to do, we end up not doing that. हम जानते हैं क्या करना है, लेकिन हम अंत में वो नहीं कर पाएंगे या नहीं करने की मन भी लगेगा. Why is this happening? So that's mentioned. Identification and attachment with body. This is the first cause and the topmost cause. All our traps in this material world, all our obstacles for the spiritual progress, इस भौतिक जगत का जो भी बंधन है और आध्यात्मिक प्रगति का जो भी अभद्र है, क्यों हो रहा है? Identification with the body, देहात्म बुद्धि, an attachment to the body. So what happens by that? It disables one from executing his duties. So when we start identifying ourselves with the body, with the wrong conception, then our focus becomes bodily focused, bodily concept focused. भौतिक नित्य कर्मों में हम बंधे जाएंगे और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें समय नहीं मिलेगा. So one is he will be disabled from executing his duties. और भौतिक कर्तव्य भी धीरे धीरे एक भार जैसा लगेगा. It start looking like a burden for him. Even his material duties, although he is having a bodily concept, and he is going far, far away from religious duties. So, and what is this ultimate duty that we have got? To execute Krishna's will. तो जो अंतिम हमारा कर्तव्य क्या है, सबसे हाईएस्ट कर्तव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अनुसार हमें जीवन बिताना है और कोई भी कार्य हमें करना है. So now how do I know what Krishna wills? तो कृष्णा का इच्छा क्या है, हम कैसे जान पाएंगे? Through Guru, Sadhu and Shastra. You must have alignment with the Guru. एक गुरु का संबंध में आपको रहना है और साधु, संत, भक्तों का संग में आपको रहना है और शास्त्र पढ़ना है. So recently, the Kerala Story movie, there has been a lot of
opinions about it, on why it happened. बहुत सारे अपने अपने क्या विचार हैं, क्यों ये हुआ. कुछ लोग दूसरे मत को ब्लेम कर रहे हैं. Some people are blaming the other religion and their conversion tactics. Whereas some people are blaming the very religion that that person belonged to. Why? Because of neglect. तो हमारे धर्म को हम जब बोल जाएंगे तो हम दूसरों के धर्म के जो तर्क होता है उसमें हम बंधे जाएंगे. We'll get caught with it. They'll ask us some question, like even in that movie, some questions were being asked to this girl. She had no answers, and she ended up getting converted. Now, when you don't have answers for the condition that you are in, you'll obviously have bewilderment and you'll be confused about the path you are going. जब आप अपने चुने हुए पथ पे आपका philosophy strong नहीं है, that's what Prabhupada always says, we must always be reading Shastra, bona fide आचार्य के माध्यम से हमें और भक्तों के संग में हमें ये शास्त्र पढ़ना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, हमारा जो फाउंडेशन है वो हिल जाएगा. And questions are asked, why is there so much suffering in this world? If everybody is God's child, तो इतना suffering क्यों है? क्या आंसर देंगे हम? So until we know the philosophy, until we know the tarka, our religion, our religious duties will only become a sentiment. तो वो sentiment हिल जाता है जब कोई प्रश्न पूछेगा फिलोसफी वाला और हम उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है हिल जाएगा. So, and both the views are correct. One is the strong tactic used by the other party, and the other one is the weak foundation that the victim has. And the parents are to be blamed. Their particular society has to be blamed for not having given attention for the study of Shastra, for accepting a guru, and for having devotee association. तो कुछ योगदान विक्टिम का भी है और उनके परिवार का है, उनके समाज का है, और कुछ योगदान ऑपोजिट पार्टी का भी है. So we cannot say that this person is completely wrong or this person is completely wrong. Both have their faults. So the cause of Arjuna's bewilderment in chapter 1, what we saw, Vishada Yoga, it is brought on by seeing in terms of one's own selfish interest. तो थोड़ा यहाँ पे अर्जुना सेल्फिश हो जाता है, जो सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, मित्रों के बारे में क्या बोल रहा है, स्वजनम ही हत्वा, मैं अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा मुझे. Why it is a selfish interest? Because till now it is not the first battle he is going to fight. ये पहला युद्ध नहीं है जो वो लड़ रहा है, अनेक अनेक युद्ध लड़ चुका है, उसमें भी लोगों को मारा होगा उन्होंने, लेकिन उस समय उनको कभी ये सोच नहीं आया कि मेरे लोग. लेकिन इस युद्ध में इट इज अ फ्रैट्रिसाइडल वॉर, वॉर बिटवीन ब्रदर्स, एंड बिकॉज इट बीइंग अ फैमिली वॉर, क्योंकि ये पारिवारिक एक युद्ध था, तो परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे आ गए, उनके साथ मित्र भी जोड़ गए, दुनिया भर के सारे लोग या तो इस तरफ थे या उस तरफ थे. तो हत्वा स्वजनम आहवे, तो मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा. सो सेल्फिश इंटरेस्ट आ गया है. दूसरा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? तो इसका परिणाम क्या हुआ? फॉर सच विजन, भय का उत्पत्ति हुआ है. अर्जुन इज फियरफुल. देन द लॉस ऑफ कंपोजर, अपना संयम खो चुका है, और इनडिसीजन, वो एक निर्दिष्ट डिसीजन पे नहीं आ पा रहा है. He's not able to make a decision, and confusion of duties. तो अपने कर्तव्यों की तरफ वो कंफ्यूज्ड है, तो वो भ्रमित है, वो सम्मोहित हो गया है. What is the cause of this? Identification with the body. Dehatma buddhi. An identification body has a selfish tone in it.
तो उसमें एक सेल्फिश एंगल मिल जाएगा. So we can mostly see the clear picture only when the storm settles down. तो हम सब कुछ क्लियरली कब देख पाएंगे, जब हमारे जीवन का जो स्टॉर्म आ गया है उसको सेटल होना है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पेशेंस, धैर्य. तो जीवन में हमारे संघर्ष बहुत सारे आएंगे, लेकिन संघर्ष के बीच में हमें क्या होता है, वी मस्ट नॉट बिकम बिविल्डर्ड, वी मस्ट नॉट बिकम फियरफुल. तो अपने संयम को हमें बरकरार रखना है. तो ये संयम बरकरार कैसे रखेंगे? On our own it is not possible. We need the support of a higher power. So when we know Krishna is there with us, then we become less fearful. In fact, we lose all fear, and we become confident that we will be able to do the right thing, and the right thing is going to happen in our life. हमारे अंदर ये दृढ़ निश्चय आ जाएगा कि हम सही मार्ग चुन सकते हैं और सही कार्य हम कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ हैं. So रक्षिष्यति इति विश्वासम. So we must always have confidence that Krishna is always going to protect us, and we must always be under the shelter of Krishna. गोतृप्ते वारणम. तो कृष्णा के शरण में हमें हमेशा रहना चाहिए. So, and what is the reason of all the conflicts in the world? It is desire versus capacity. तो मेरे इच्छा और मेरे क्षमता, इन दोनों के बीच संघर्ष हमेशा चल रहा है. There is always a war going on between my desires and my capacity. My capacities are limited, my desires are unlimited. मेरे क्षमता का बाउंड्रीज हैं, मेरे इच्छाओं का कोई बाउंड्रीज नहीं है. That's why I must always regulate, and that regulation should be based on शास्त्र प्रमाण. तो शास्त्रों के अनुसार हमें रेगुलेट करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं सोमवार मैं व्रत रखूंगा, मैं उपवास करूंगा. कौन सा धर्म, कौन सा शास्त्र में दिया है आपको हर सोमवार को उपवास करना चाहिए? आजकल तो एवरी डे ऑफ द वीक वन उपवास आ गया है इस देवता के लिए इस दिन, तो 7 के 7 दिन भी उपवास हो जाएगा. तो एंड वी चूज वन ऑफ दैट. No, it is not to be done like that. Nowhere in Shastra it is given like this. The upvasas that we do are only for the appearance days, disappearance day of our acharyas, and then the major festivals of Radha Rani, Krishna Bhagavan और चैतन्य महाप्रभु. फिर एकादशी, every 15 days एकादशी व्रत हमें रखना है. That's the best fasting vrata to keep. So having said this, we will move ahead with today's discussion. Today also I have taken a neat 15 minutes for introduction. Whenever I feel that there is a very nice question that is being asked, I will take time for the introduction. So we will move ahead with today's shloka. Dvava prithviyoridam mantaram hi vyaptam tvayaiken dishasya sarva विश्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्. तो कृष्ण तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहा है कृष्ण को, और संजय वर्णन करना है यही बात धृतराष्ट्र को. तो ऑल्दो यू आर वन, तो आप वास्तव में एक ही हो, कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं. यू आर स्प्रेड थ्रू आउट द स्काई, लेकिन अब मैं आपके विश्व रूप में देख रहा हूं कि आप पूरे अंबर में फैल चुके हो. एंड द प्लैनेट्स एंड ऑल स्पेस इन बिटवीन, और आप आकाश में हो, आकाश और पृथ्वी और अनेक ग्रहों के बीच में हो, और उसके बीच जो स्पेस है उनके बीच में आप फैले हुए हो. ओ ग्रेट वन, एज आई बिहोल्ड दिस टेरिबल फॉर्म. 2-3 श्लोक पहले अर्जुना क्या बोला था? अद्भुत, वंडरफुल फॉर्म. अब वो बारीकी से देख रहा है, और बारीकी से देख रहा है, कराल दृश्य देख रहा है वो. सो इज डिस्क्राइबिंग इट एज व्हाट? उग्रम तवेदम, उग्रम रूपम दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम
उग्रम, दिस इज टेरिबल फॉर्म। मैं तो इसको एक अद्भुत रूप सोच रहा था, लेकिन ये अद्भुत एक विपर्यास है, क्योंकि ये उग्र रूप है। तो विश्व रूप के लिए अर्जुन ऐसे बोल रहा है। And I see that all the planetary systems are perplexed. लोकत्रयम प्रव्यतितम महात्मान। तो मैं देख रहा हूं अतिमात्र से तीनों लोक में यह प्रव्यतिता, देर इज परप्लेक्सिटी, मतलब कड़वला, क्या बोलते हैं, देर इज कमोशन दैट इज हैपनिंग इन द थ्री वर्ल्ड्स। कोई भी लोक में समाधान नहीं है। All the lokas are getting bewildered. For what? For the Ugra Rupa, for the darshan of the Ugra Rupa. तो द्वावा पृथ्वी और इदम अंतरम ही। तो आप ग्रहों के बीच में हो, आप आकाश में हो, और आप स्पेस में हो, फैले हुए हो विश्व रूप में, लेकिन आप एक ही हो, आप मेरे सामने हो, लेकिन आपका ये रूप हर जगह फैल चुका है। ये अद्भुत रूप है, उग्र रूप है, तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम। और तीनों लोग यहाँ पे बिल्डर हो चुका है, फियरफुल हो चुका है, कमोशन में आ चुके हैं। महात्मन, ओ ग्रेट वन, हे कृष्णा, हे महा आत्मा, हे परमात्मा, ये आपके रूप का दर्शन से मुझे भास हो रहा है। So we can see here, Arjuna is telling, Dvama Prithvi, the space between heaven and earth, and Lokatrayam, three worlds, तीनों लोकों में और आकाश में और जो बीच में जगह है, वो सब जगहों में, the significant words in this verse, बहुत है कि ये significant words है। क्यों है पद, क्यों है? Because it appears that not only Arjuna saw the universal form of the Lord, but others in other planetary systems also saw it. यहाँ पे संजय देख रहा है, दिव्य दृष्टि प्रदान हो चुका है व्यास देव के माध्यम से, और अर्जुन तो देख ही रहा है, बाकी कोई युद्ध भूमि में नहीं देख पा रहा है, लेकिन कोई और देख रहा है। कौन देख रहा है? अपर प्लानिटरी सिस्टम्स, सारे देवता। सो अदर्स इन अदर प्लानिटरी सिस्टम्स आल्सो सॉ इट। The vision was not a dream. All who were spiritually awake with the divine vision saw it. जो भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे थे, वो ये उग्र विश्व रूप को देख पा रहे थे। तो भीष्म और द्रोणा क्या देख पा रहे थे? शायद नहीं देख पा रहे थे, because only Sanjay was able to see, Arjuna was able to see on the battlefield, and Bhishma and Drona had lost their way, अधर्मी बन गए थे, तो ज्ञान चक्षु खो गए थे, हो गया था उनका। तो ये पॉसिबल है कि उन्होंने नहीं देखा। बहुत सारे व्याख्यान में ये उल्लेख होता है कि ये लोग नहीं देख पाए विश्व रूप। सो नेक्स्ट श्लोक 21। आमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता पञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। So what is Arjuna continued to tell here? All the demigods are surrendering and entering into you. अमीहि त्वां सुरसंग विशन्ति। तो आपके अंदर सारे सुरगण प्रवेश कर रहे हैं। They are very much afraid. केचित् भीताः, वो बहुत ही भयभीत हो चुके हैं। And with folded hands are singing Vedic hymns. प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, तो करबद्ध होके वो आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा, तो स्वस्ति इति उक्त्वा, मे देयर बी पीस। स्वस्ति इति उक्त्वा, ऐसे बोलते हुए महर्षि सिद्ध संग, महर्षि लोग, सिद्ध संग, सिद्ध पुरुष, सारे लोग स्तुवन्ति त्वाम, आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति भी पुष्कलाभिः, तो आपका स्तुति और आपका गुणगान अपने आप कर रहे हैं? नहीं, पुष्कलाभिः, मतलब वेद शास्त्र के अनुसार आपका जो वर्णन है उसी के अनुसार वो आपका गुणगान कर रहे हैं।
So the demigods in all the planetary systems, since up to shloka number 32, there are very short purports or there are no purports. I will continue to keep the screen on, because the share screen on. I will not switch back to our view till we enter a particular stage. So the demigods in all planetary systems fear the terrific manifestation of the universal form. So जो देवता गण थे अपने अपने लोकों से वो देख रहे हैं और वो भयभीत हो चुके हैं। वो आपकी स्तुति गा रहे हैं और आपके रक्षा, आपसे रक्षा के लिए वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सो विल गो नेक्स्ट श्लोका। I pressed the wrong one. So now Arjuna is telling what are further things he's seeing. देव गण को वो प्रवेश करते हुए देख रहे हैं भयभीत होके। फिर रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। और क्या देख रहे हैं अर्जुन और संजय और बाकी देवता? The different manifestations of Lord Shiva and the Adityas. तो 12 आदित्य, 11 रुद्र, फिर द वसुस वसवो ये च साध्या और साध्यगण, फिर विश्वदेवा विश्वे, अश्विनी कुमारास द 2 अश्विनास अश्विनौ, मरुतस 40 मरुतास, 40 तरह के मरुत होते हैं तो वो सारे भी दिख रहे। च उष्मपा, उष्मपा मीन्स द 4 फादर्स, मेरे पितृगण मुझे दिख रहे हैं। गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संगा, फिर मैं क्या देख रहा हूँ? गंधर्वों को, यक्षों को, असुरों को, सारे सिद्ध गण को मैं देख पा रहा हूँ। एंड ऑल परफेक्टेड डेमिगॉड्स। तो वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, तो विस्मिताः इन वंडर, दे आर बिहोल्डिंग यू इन वंडर। ये सारे लोग भी आपको देख पा रहे हैं और आपको अद्भुत, आपका ये अद्भुत रूप को वो देख रहे हैं। सो फर्दर रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम। देखिए अगेन इन एक्साइटमेंट अर्जुना इज अगेन रिपीटिंग महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरं बहुदंष्ट्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। ये पहले भी बोल चुका है अर्जुना, फिर बोल रहा है रूपम महत्ते, तो आपका ये विशाल रूप में, बहुवक्त्र नेत्रम, मैं ओमाइटी आर्म, मैं अनेक मुख को देख रहा हूँ, अनेक आंखों को देख रहा हूँ। महाबाहो, हे वो द स्ट्रॉन्ग आर्म्ड कृष्णा, बहु बाहु ऊरु पादम, और अनेक अनेक मैं भुज और ढांगे और पाद को देख रहा हूं। देन बहु उदरम, अनेक उदर को मैं देख रहा हूँ। बहुदंष्ट्र, मैं अनेक दांत को देख रहा हूँ। कैसे दांत? करालम, मतलब बहुत ही घोर रूप, उस दांतों का घोर रूप मैं देख रहा हूँ। दुष्टा लोक प्रव्यथितास्तताम, एज दे आर डिस्टर्ब्ड सो एम आई। तो दुष्टा लोका, ये सारे लोग देख रहे हैं, और प्रव्यथिता, वो भी परटर्ब, दे आर डिस्टर्ब्ड, वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो तथा अहम, और मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे अंदर भी भय उत्पन्न हो चुका है। फर्दर, so what is further things Arjuna is seeing? See, this is what is being visible in the universal form. नभस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याथाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। अर्जुन बोल रहा है, वो ऑल परवेडिंग विष्णु, हे विष्णु जो हर जगह फैल चुके हैं, हे विष्णु भगवान, I can no longer maintain my equilibrium. तो
धृतिम न विंदामि शमम, मैं अपने धृति को रहा हूँ, आई एम लूजिंग माई कंपोजर। तो सीइंग योर रेडियंट कलर्स, अनेक वर्णम, दीप्तम अनेक वर्णम, फिल द स्काईज, व्याख्याननम, फिर व्याख्याननम मतलब ओपन माउथ्स, आनना माउथ, व्याख्यानना, तो द मेनी माउथ्स दैट आर ओपन, जिस जिस मुंह से आप निगल रहे हो सबको। देन seeing your radiant colors fill the skies and beholding your eyes and mouths, I'm afraid. तो प्रव्यथिता अंतरात्मा, तो मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मेरे आत्मा विचलित हो गया है। तो आपका ये कराल रूप को देख के, नभस पुरुषम टचिंग द स्काई, आपका आपका ये विश्व रूप आकाश तक फैल चुका है। तो दीप्तम इज ग्लोइंग, देयर इज एफल्जेंस, एंड देन आई एम सीइंग टेरिबल टेरिबल फॉर्म्स विद इन यू, इससे मेरा धृति में हो रहा हूँ। द नेक्स्ट अगेन रिपीटिशन, दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि, वही बोल रहा है। दंष्ट्रा, दंष्ट्रा क्या है, फिर दांत की बात, दंष्ट्र करालानि, कराल मतलब विकृत रूप, मुखानी, फिर आनंद की बात कर रहे हैं, मुख की बात कर रहे हैं। तो दुष्ट कालानल सन्निभानी, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवे च जगन्निवासम। तो पहले विष्णु बोल चुका है, अब जगन्निवासा बोल रहे हैं। इससे पहले विश्वात्मा बोल चुके हैं। तो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, देवेशा, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, जगन्निवासा, जगत के रक्षक, जगत के आश्रय, देव का ईश, प्लीज बी ग्रेशियस अनटू मी, प्रसीदा प्रसीदा, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। आई कैन नॉट कीप माई बैलेंस, न जाने न लबे च शर्मा। तो व्हाट इज दिस शर्मा? आपके ग्रेस, आपके आशीर्वाद से, तो आप मुझे प्रसाद रूप, मुझे आप शांति दिलाइए। दिशो न जाने, तो कोई दिशा मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बिकॉज अब सब मेरे आवृत हो गया है। कौन सा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऊपर नीचे सब भूल चुका हूं मैं। देन seeing your blazing death-like faces, damshtra karalani chate mukhani, drishtva kala anala sannibhani, and the awful teeth in all directions I am bewildered. Kala anala sannibhani, the kala anala, fire of death, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे मौत ही मौत देख रहा हूँ। सन्निभानी, एज इफ ब्लेजिंग, तो तो सब लोग जल के राख हो रहे हैं। तो और मुंह, आपके मुंह के अंदर वो प्रवेश कर रहे हैं और आप आपके दांतों से उनको चबा रहे हो, मौत के घाट आप उनको उतार रहे हो। तो इसको देख के मैं बहुत ही भयभीत हो चुका हूँ। आप प्रसीद, आप मेरे ऊपर शर्मा प्रसीद, आप मेरे ऊपर दया कीजिए और मुझे इस भीति से आप निकालिए। फिर क्या देख रहा है अर्जुना? अनीचत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्र, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र को देख रहा है वो। सी ऑल दी सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, सर्वे सहैवावनि पाल संगे, सर्वे सह इव अवनि पाल संगे, सब लोग यमलोक जा रहे हैं। तो सब लोग मौत की घाट उतार रहे हैं। तो कृष्णा बिफोर द वॉर इज शोइंग how they're all going to die. There are whoever is being seen there entering the mouths are going to die. भीष्म द्रोण सूत पुत्र तथासो, भीष्म भी, द्रोण भी, और सूत पुत्र कर्ण तथासो, तो इनमें से धृतराष्ट्र के पुत्र भी मौत की घाट उतर रहे हैं। भीष्म द्रोण कर्ण भी मौत के घाट उतर रहे हैं। दे आर ऑल फेसिंग देयर डेथ्स। साहसमदीय अपि योध मुख्य है। साहसमदीय, साहसमदीय का मतलब है
with अबर अस्मदीया, तो हमारे लोग भी मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, योधमुख है, हमारे बड़े बड़े योद्धा भी मौत का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल आवर सोल्जर्स आर रशिंग इनटू योर माउथ्स। तो वक्त्राणि ते रमणा विशंति, वक्त्राणि आपके मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो रमणा, रमणा, त्वरमणा, रमणा मीन्स वेरी प्लीजिंग, त्वरमणा वेरी फियरफुल, भीकर, टेरिबल, विशंति, तो दे आर एंटरिंग, आपके मुंह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दंष्टा करालानि भयानिकानि, फिर दांत दिख रहा है उसको, फिर बारी बारी बार बार उसको ये दिख रहा है कि सबको चबा चबा के मौत के घाट उतार रहा है विश्व रूप। Their heads are smashed by your fearful teeth. केचित् विलग्न दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितः। तो दांत जब आप चबा रहे हो, जब चबा रहे हो, चूर्णिता, वो मतलब वो चूर्ण बन रहे हैं, उत्तम अंगय, उनका सर चूर्ण चूर्ण हो रहा है, चूर चूर हो रहा है। So in between your teeth, they are getting crushed as well. So you see what a terrible form that Arjuna is seeing. So this particular shloka has got a small purport. We will do this purport. In a previous verse, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interested in seeing. तो कुछ श्लोक पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था, आपको अनेक अद्भुत दृश्य दिख जाएगा। और now Arjuna sees that the leaders of the opposite party, Bhishma, Drona, Karna और अन्य लोग, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र, and their soldiers, Arjuna's own soldiers are being annihilated. तो पांडव के पक्ष से भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, और उस तरफ से तो अतिरिक्त सारे लोग मारे जाएंगे। तो एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू पीपल, अश्वत्थामा, कृतवर्मा ऐसे लोगों को छोड़ के, कृपाचार्य ऐसे लोगों को छोड़ के, बाकी सब मौत के घाट को उतरने वाले हैं। और now Arjuna sees that the leaders of the opposite party are being annihilated. This is an indication that Arjuna will emerge victorious in battle. लेकिन अर्जुन को गति नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई भी पांडव को ये गति प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कृष्ण दर्शा रहा है कि आप सुरक्षित हो, तो भविष्य में क्या होगा ये दिखा रहे हैं, क्योंकि विश्व रूप में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों दिखेगा। तो फ्यूचर में क्या होगा कृष्ण दर्शा रहे हैं अर्जुन को, और आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को। So this is an indication that Arjuna will emerge victorious despite heavy losses on both sides. उनके तरफ से भी बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, फिर भी पांडव का यश और पांडव का जय यहाँ पे निश्चित है। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दना, जिस पक्ष में कृष्ण भगवान है वही पक्ष हमेशा जीतेगा, जहां पे भगवान है वहां पे जीत होगा। So this, or it is also mentioned here that Bhishma was supposed to be unconquerable, will be smashed. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे भीष्म को इच्छा मृत्यु है, लेकिन इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उनका अंत होगा, ये उनका आखिरी युद्ध होगा, यहाँ पे उनका मृत्यु होगा। So also Karna is more powerful than Arjuna. But Karna is also going to die. द्रोणा जो अर्जुन के गुरु हैं वो भी मारे जाएंगे। Not only will the great warriors of the other party like Bhishma be smashed, but some of the great warriors Arjuna side also, अर्जुन के पक्ष में भी अनेक लोग मारे जाएंगे। तो आप पूछ सकते हैं, अरे अर्जुन के पक्ष में तो, पांडव के पक्ष में तो, कर्म के पक्ष में है, तो क्यों मारे जाएंगे? इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि वो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अर्जुन के पक्ष में इसलिए आए थे क्योंकि उनको ऑपोजिट पार्टी से कुछ क्या बोलते हैं, रिवेंज लेना था, कुछ ना कुछ मुद्दा था, रिवेंज लेने के लिए इस तरफ आए थे, धर्म की वजह से नहीं आए थे। तो कुछ लोग, तो ऐसे लोग मरने वाले थे जो अपने स्वार्थ के लिए, अपना एक जो रिवेंज लेने के लिए इस तरफ आए थे, तो वो लोग मारे जाएंगे। So we will go ahead with one more shloka
and try to fit it in because they don't have purports. So, yata nadinam bahavo ambavega samudrameva vimukadravanti tata tavami naraloka veera vishanti vaktrani abhivijvalanti. Quickly, what is Arjuna saying? As the rivers flow into the sea, yata nadinam bahavo ambavega, जोर गति से जैसे नदी सागर में प्रवेश कर रहा है, like seas, like rivers are entering at a fast pace into the sea. All these great warriors enter your blazing mouths and perish. बार बार उसको मुख दिख रहा है, दंष्टा दिख रहा है, क्योंकि वहीं पे मौत दिख रहा है उसको. समुद्रम एवाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्तानि अभिविज्वलंती. सब लोग आपके मुख के अंदर प्रवेश करके मौत पा रहे हैं. विशंति वक्त्राणि अभिविज्वलंती. All the great warriors on both sides are going to face this terrible situation, the terrible end. Yata pradiptam jwalanam patanga vishanti nashaya samruddha vega tataiva nashaya vishanti lokas tavapi vaktrani samruddha vega. So, yata pradiptam. So I see all people rushing with full speed into mosque. बार बार वही बता रहे. यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा, एक उदाहरण भी दे दिया उसने. As moths dash into blazing fire, जैसे पतंगा अग्नि के अंदर प्रवेश करके आत्महत्या कर लेता है, वैसे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा. तो ऐसे जब उसका नाश होगा, ततैव नाशाय विशंति लोकास. तो एक कुरुक्षेत्र भूमि में जो युद्ध छेड़ के आए हैं, तो तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, वैसे ये लोग भी मौत के ज्वालामुखी में, मौत के ज्वाला में वो प्रवेश कर रहे हैं. ये मैं देख पा रहा हूँ. So then Arjuna contains lehi yasye grasamana samantal loka samagran vadane jvalabdi tejo virapurya jagat samagram भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु. तो हे विष्णु, ओ विष्णु, I see you devouring all people in your flaming mouths. तो मैं देख रहा हूँ आप सारे योद्धाओं को आप अपने मुंह से चूर्ण करके खा रहे हैं. फिर फ्लेमिंग माउथ्स, तो आपका आपके मुंह में ज्वाला भी दिख रहा है, जिसमें वो राख हो रहे भी, राख भी हो रहे हैं. एंड कवरिंग द यूनिवर्स विथ योर इमेजरेबल रेज तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम, आपका तेज सारे विश्व में फैला हुआ है. स्कॉर्चिंग द वर्ल्ड्स यू आर मैनिफेस्ट. तो भासस तव उग्र प्रतपन्ति विष्णु. स्कॉर्चिंग, तो हर जगह अग्नि की वजह से, ज्वाला की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. तो लेयसे ग्रसमान समंतल, लिकिंग, डिवोरिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जैसे कि कोई बहुत ही मजे से खा रहा है, अपने दोनों होठ को अपने जीभ से वेट कर रहा है. तो लेयसे ग्रसमान समंता. तो कृष्ण, तो अर्जुना is telling you are in a very vigorous way devouring all the warriors that are present on this battlefield. So with this we will end this discussion today because we are running out of our time. I'll be here for the next half an hour on WhatsApp. You can contact me by phone, video call, or by message. And, I can answer your questions. And if you feel it's too late, you can ask me anytime during this week. So we'll meet for Bhagavad Gita again next week on Monday.